have shear failure of soil. So what happens when soil is loaded? Shearing stresses are induced in it. When the shearing stresses reach a limiting value, shear deformation takes place, leading it to a failure of the soil mass. So shearing stress are induced when the soil is loaded with something like structure. If अगर उस पर कोई weight आता है तो उस पर shearing stress produce होते हैं और अगर वो एक लिमिट से ज्यादा हो गए तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है उसका और जिसकी वजह से फेलियर होता है सॉइल का. तो फेलियर कैसा हो सकता है जैसे सिंकिंग ऑफ फुटिंग, मूवमेंट ऑफ वेस्ट ऑफ सॉइल बिहाइंड रिटेनिंग वॉल टू फोर्स इट टू मूव आउट. तो अगर फुटिंग का डूब जाना, फुटिंग टूट जाना और अगर एक रिटेनिंग वॉल है तो उसके अंदर से पूरा वो सामान पूरा बाहर आ जाता है उसके अंदर जो भी भरा हुआ है. और अगर एम्बैंकमेंट में स्लाइड आ गया, the property that enables a material to remain in equilibrium when its surface is not in level is defined as its shear strength. So the property that enables a material to remain in equilibrium when its surface is not in level is defined as shear strength. So shear strength of soil is one of the important engineering property of soil. Design of foundation, determination of bearing capacity, study of stability of slopes can be done only after knowing the shear strength of soil. Shear strength of soil can be defined as the resistance to deformation by continuous shear displacement of soil particles, right? So these are some examples of shear failures of soils. So ऐसे यहाँ से पानी गिर जाता है, ये इसका टूट जाना क्योंकि इस पे ज़्यादा लोड आ जाए. And then this actually happened. This is foundation failure by liquefaction after the 1964 Niigata earthquake. Due to earthquake, the foundation failure occurred. That is different thing. So it is a property of soil which enables the soil to live in equilibrium and sloping surface. Sloping surface may be slight slope of embankment and other dams. The shear strength of a soil depends on frictional force, cohesion, and valency. So friction force, it is the force produced due to friction between two surfaces of contact when load is applied on soil mass. Friction is produced due to interlocking of particles which prevent the sliding. So friction force दो surface के contact में आने से होता है and जब लोड अप्लाई होता है सॉइल मास पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं स्लाइडिंग को. कोहेजन, due to cohesion property of some soil, force of attraction between individual particles arises. तो कोहेजन प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कोई पार्टिकल्स में जो सिंगल पार्टिकल्स में वो ज्यादा बढ़ जाता है जो सॉइल को पकड़ के रखते हैं एक साथ. सो व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन सॉइल मास, तो जब उस पर लोड अप्लाई होता है रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा होता है तो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है सॉइल मास की. डायलेंसी क्या है? डायलेंसी एक्सपांशन ऑफ सॉइल ड्यू टू शियर एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डायलेंसी. तो जो अगर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो सॉइल का एक्सपांड हो जाती है सॉइल. It is observed by the experiment that the change in void ratio due to shear depends upon the vertical load and relative density of sand. तो जो एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि void ratio में जो चेंज आता है वो shear की वजह से जो चेंज आता है void ratio में वो vertical load पे और जो relative density sand पे उस पर डिपेंड करता है. तो डायलेंसी अफेक्ट करती है shear strength को. तो नेक्स्ट इज फील्ड सिचुएशन ऑफ shear failure. तो shear failure कहाँ पे होता है and like shearing strength of subsoil which is overstressed and cause for settlement of the foundation of structure following the field system. तो sloping slides in the embankment of रोड के साइड में ये देखो ये पूरा नीचे गिर गया है. तो दिस इज sloping slides in embankment of earthen dams. earthen dams में भी ये होता है and पूरे घिसक जाते हैं, ऐसे स्लाइड हो जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट स्लाइड हो जाते हैं. एंड अर्थ प्रेशर अगेंस्ट रिटेनिंग स्ट्रक्चर. तो जो अर्थ प्रेशर था रिटेनिंग स्ट्रक्चर की इधर उसकी वजह से स्लोपिंग स्लाइड्स ओपन कट में जो स्लोपिंग स्लाइड होते वो भी स्लोप हो जाते हैं, निकल जाते हैं. एंड नाउ वी हैव components of shearing resistance of soil. So cohesion, there are a number of soils which have finite shearing strength even though there is no normal load acting on it. तो बहुत से soils है जिसमें एक finite shearing strength है
तभी भी जब भी उस पे नॉर्मल लोड एक्ट नहीं करते, शीयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है ऐसे सॉइल की, वो अगर जैसे लोड बढ़ता है वैसे उसकी शीयरिंग स्ट्रेंथ वैसे नहीं बढ़ती, और ऐसे सॉइल को कहते हैं प्योर कोहेसिव सॉइल। सो जिन सॉइल्स की पहले से ही शीयरिंग स्ट्रेंथ होती है, और मतलब जिस पे नॉर्मल लोड एक्ट ही नहीं करता फिर भी उसकी शीयरिंग स्ट्रेंथ होती है, और जिसकी शीयरिंग स्ट्रेंथ ऐसे नहीं बढ़ती कि भाई लोड बढ़ा दिया तो चलो शीयरिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे सॉइल्स को कहते हैं प्योर कोहेसिव सॉइल। shear shear strength of cohesive soil is depend upon cohesion। तो कोहेसिव सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कोहेजन पे डिपेंड होती है। कोहेजन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय कंसीडरिंग टू शीट्स ऑफ फ्लाई पेपर विद द स्टिकी साइड्स इन कांटेक्ट। तो इसको तुम कैसे मतलब सोच सकते हैं कि दो शीट लो फ्लाई पेपर के, और मतलब उनकी एक स्टिकी साइड होती है, एक नॉर्मल साइड होती है, तो उनको कांटेक्ट में लाओ। तो अगर हमको वो दो स्टिकी शीट्स को एक दूसरे पे रगड़ते हैं, स्लाइड करते हैं, तो उसमें बहुत ताकत लगेगी, लेकिन उसपे ताकत लग रही है लेकिन उसपे लोड एक्ट ही नहीं हो रहा है। सो इसको कहते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि जो स्टिकी साइड जो होते हैं उसमें कोहेजन होता है। कोहेजन प्रॉपर्टी ऐसे बता सकते हैं कि इस पे यूज ही नहीं होता है नॉर्मल लोड, फिर भी उसमें होता है शेयरिंग स्ट्रेंथ। कोहेजन की प्रॉपर्टी होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, ये सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है पास में, जैसे कि स्टिकी का हमने एग्जांपल लिया। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ surface forces causing cohesion is not known, but maybe of force of attraction। तो इसका जो एग्जैक्ट नेचर है सरफेस फोर्सेस का जिसकी वजह से कोहेजन हो रहा है वो पता नहीं है, लेकिन मे बी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। कोहेजन इन सॉइल मे बी ड्यू टू सीमेंटेशन इन नेचुरली ऑकरिंग सॉइल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स की वजह से सीमेंटेशन की वजह से भी कोहेजन होता है मोस्टली, क्योंकि इसमें कार्बोनेट्स होता है नेचुरली ऑकरिंग सॉइल्स में, जैसे कि आयरन सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। और सैंड जो होती है वो कोहेजन लेस सॉइल्स होती है, लेकिन उसमें से पहले से ही कोई shear strength नहीं होती है, कोहेसिव प्रॉपर्टीज का कोहेजन है। तो वो सॉइल जो कोहेसिव प्रॉपर्टी नहीं शो करती उसको कहते हैं प्योर कोहेजनलेस सॉइल। नेक्स्ट वी हैव इंटरनल फ्रिक्शन। Shear in cohesionless soil is similar in many respects to the phenomenon of friction between two bodies. Consider a block shown in figure 3.19. It is an equilibrium under its own weight, W and normal reaction surface N. So ये एक ब्लॉक है जिस पे W ये वेट एक्ट हो रहा है एंड नॉर्मल रिएक्शन सरफेस है। और ये जो ब्लॉक दूसरा है तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से हम फोर्स ऐड कर रहे हैं इस पे, और इसका वेट है ब्लॉक का, और इस पे अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये साइड में मूव होगा, लेकिन ये साइड में मूव होते होते थोड़ा इसको दम लगेगा, ज्यादा दम लगेगा, राइट। वो ज्यादा दम क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें इन in response to this we have frictional force acting against of it। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एफ वो इसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, और इसकी वजह से हमको एक ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सरफेस में भी थोड़ा इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसलिए हमने पढ़ा था फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है। तो इस वो पर होते होते फिर यहाँ से उसको शीयरिंग रेजिस्टेंस भी मिलता है, राइट। तो नेक्स्ट वी हैव इज shear strength in soil। तो मोर कॉलम्स फेलियर क्राइटेरिया। तो इसमें क्या बताया गया कि अगर मटेरियल फेल होता है बिकॉज ऑफ क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एंड नॉट, तो मटेरियल फेल इसकी वजह से होता है क्योंकि क्रिटिकल सॉरी ये थ्योरी हमें बताती है कि मटेरियल फेल होता है बिकॉज ऑफ critical combination of normal stress and shear stress and not from their either maximum normal और shear stress alone। तो ये किसी एक की वजह से नहीं फेल होता है, सॉरी वो फेल होता है नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस दोनों की वजह से फेल होता है। तो ये था मोर कॉलम की फेलियर थ्योरी में, इसमें ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल है, नथिंग मोर देन दैट। सो नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल्स।
तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स में क्या आता है, तो शेयर स्ट्रेंथ के बेसिस पे सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोहेजनलेस सॉइल और प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो फर्स्ट कोहेजनलेस सॉइल, तो ये सॉइल क्या होता है ना, इसमें कोहेजन ही नहीं होता है। कोहेजन क्या होता है, दो पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें ये आता है। तो ये सॉइल का भी वैसा ही कुछ है कि ये सॉइल जो है अपनी शेयर स्ट्रेंथ इंटरग्रैनुलर का जो फ्रिक्शन होता है, यानी अगर ग्रैन्युल जो एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो उससे हमको जो फ्रिक्शन फोर्स होता है तो वो मिलता है। तो ये सॉइल्स को इसलिए ऐसा भी बोलते हैं कि फ्रिक्शनल सॉइल्स है, कोहेजनलेस सॉइल। सो सैंड और ग्रेवल इस टाइप के हैं। एंड सेकेंड वन, इट इज प्योरली कोहेसिव सॉइल्स। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, सो कीप दिस इन माइंड। एंड नेक्स्ट प्योरली कोहेसिव सॉइल, तो ये सॉइल्स क्या होते हैं, इसमें कोहेजन होता है, but the angle of shearing resistance C is equal to 0. For example, saturated clays and silt under undrained conditions. So purely cohesive soils exhibit cohesion, and this is the graph for it. Remember the graph. So this is the difference between cohesion and cohesionless and pure cohesion soil. There are 5 points. So in cohesionless soil, there is no cohesion or attraction between two individual particles. In purely cohesive soil, there is इस यहाँ पे इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन होता है। एंड प्योरली कोहेसिव सॉइल में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो दैट इज प्योरली कोहेजन सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल में पार्टिकल्स का स्मॉल स्पेसिफिक एरिया होता है, सरफेस होता है, तो उसकी साइज और शेप की वजह से, तो इससे उसमें से कोहेजनलेस सॉइल में स्मॉल स्पेसिफिक सरफेस है, राइट। स्मॉल स्पेसिफिक सरफेस यानी मोर परमेबिलिटी, जैसे कि हमने परमेबिलिटी सेक्शन में पढ़ा था। स्मॉल स्पेसिफिक सरफेस यानी मोर परमेबिलिटी, और लार्ज स्पेसिफिक सरफेस यानी लेस परमेबिलिटी। In purely cohesive cell, the specific surface of the particles is large because of their size and shape. तो purely cohesive cells में specific surface large होता है। So gravity forces, mass forces govern the behavior of the particles. तो जो ग्रेविटी फोर्सेस होते हैं हमारे, वो पार्टिकल्स का बिहेवियर ये करते, रेगुलेट करते हैं। सरफेस फोर्सेस ये होता है कोहेजन लेस सॉइल में। प्योरली कोहेसिव सॉइल में सरफेस फोर्सेस, जो सरफेस पे जो फोर्स एक्ट होते हैं वो बिहेवियर रेगुलेट करते हैं पार्टिकल्स का। इसका एग्जांपल है सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल कौन से? सैंड एंड ग्रेवल है कोहेजन लेस सॉइल्स, और जो सैचुरेटेड क्लेज एंड सिल्ट है वो होते हैं प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो इसके दो फिगर्स है, उसको एक करना है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इसका लैबोरेटरी डिटर्मिनेशन क्या है, तो इसमें 4 मेथड्स है। So there are 4 methods for this, and sorry. So the first method is direct shear test, triaxial shear test, unconfined compressive strength test, laboratory vane shear test. So remember all of these 4 names. And now field methods. So starting with direct shear test, it is asked many times in exams, so it is most important to study. The method. So in this test, an undisturbed or remolded sample of dimension 6 centimeter into 6 centimeter into 2 centimeter thick is taken in a metal box. The box can be split horizontally at the level of center of sample, and vertical load, which is also what is normal load, is applied on the sample as shown in figure 3.26, and the shear load necessary to fail the sample is measured with the help of tubing ring assembly. So ये इसमें एक सैंपल लिया जाता है डिमेंशन का 6x6 डिमेंशन का, और उसको मेटल बॉक्स में रखा जाता है। उस पर वर्टिकल लोड एक्ट किया जाता है, और उसके बाद शेयर लोड नेसेसरी है इसको फेल करने के लिए, तो वो कैलकुलेट किया जाता है। एंड नॉर्मल लोड तो कांस्टेंट ही रहता है, तो नॉर्मल लोड
को अगर हम डिवाइड करते हैं उसके एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस देता है। और शेयर लोड एट फेलियर डिवाइडेड, और शेयर लोड को अगर हम डिवाइड करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो हमें शेयर स्ट्रेस देता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस हमें ऐसे मिलते हैं। तो दिस ऑब्जर्वेशन गिव्स वन पॉइंट फॉर प्लॉटिंग पर्पस। तो इससे हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस का। To obtain other points, trying to draw a line representing Coulomb's law, failure envelope, three more points have to be obtained। तो इसके ऐसे ही हमें बहुत से points obtain करने हैं। तो इसको बहुत अलग अलग सैंपल्स से रिपीट किया जाता है। सेम कंडीशन रिगार्डिंग डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट एक्सेट्रा एज दैट ऑफ फर्स्ट सैंपल। तो पहले सैंपल का हम देख लिया कैसे करते हैं। मतलब ऐसे बहुत से सैंपल देते हैं कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए। तो ईच सैंपल इज टू बी टेस्टेड विद डिफरेंट नॉर्मल लोड। तो हर एक का ऑब्वियस है कि नॉर्मल लोड डिफरेंट ही होगा, विच इज नोन एज हॉरिजॉन्टल शीयरिंग लोड। अप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1.25 mm पर मिनट। तो हॉरिजॉन्टल शीयरिंग लोड अप्लाई किया जाता है 1.25 mm पर मिनट के रेट से। द लोअर हाफ पोर्शन ऑफ द बॉक्स इज माउंटेड ऑन रोलर्स। इसको हम रोलर्स पे रहता है लोअर हाफ इसका। एंड विच मूव्स फॉर्म ड्यू टू मोटराइज अरेंजमेंट। तो ये मूव भी कर सकता है। अब प्रूविंग रिंग इज अटैच टू द अपर हाफ पोर्शन। एक प्रूविंग रिंग अटैच होती है इसको ऊपर अपर हाफ इसमें। एंड विच इंडिकेट्स द डिफॉर्मेशन ऑफ द डायल गेज। तो वो बताता है हमें कि डायल गेज डिफॉर्मेशन कितना है। The deformation readings are multiplied by a proving ring constant to get the horizontal load applied। तो हॉरिजॉन्टल लोड निकालने के लिए हमको जो डिफॉर्मेशन रीडिंग होती है हमारी, उसको प्रूविंग रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमें हॉरिजॉन्टल लोड मिलता है। once the point are plotted to establish Coulomb's law, slope of the best fitting line through all the points gives angle of internal friction। तो एक बार हम सब पॉइंट्स बना लिए तो हमको स्लोप मिलता है बेस्ट फिटिंग लाइन का थ्रू ऑल द पॉइंट्स। gives the angle of internal friction भी मिलता है। एंड in degree, and intercept of on y-axis gives the value of cohesion of the units in stress। तो जो y-axis होता है यानी जो स्ट्रेट वाला एक्सिस होता है हमारा, उस पे हमें वैल्यू मिलती है कोहेजन की। मतलब यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की यूनिट में किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो लिमिटेशंस क्या है टेस्ट की? तो the failure of the sample due to shear load is always along a predetermined plane passing horizontally through the center of the sample। तो इसका क्या होता है, जो फेलियर है जो हम कर रहे हैं shear लोड की वजह से, वो एक ऑलरेडी एक प्लेन, एक पहले प्रीडिटरमाइंड प्लेन ही होता है जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और to the center of the sample। It may not be the weakest plane, as such shearing strength indication may be higher than the true one। तो ये सब इस पे हॉरिजॉन्टल जो शेयर लोड होता है वो एक ही पार्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका वही लिमिटेशन है। तो ये हो सकता है ना कि ये पार्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग और बाकी ये पार्ट वीक हो, तो इसकी वजह से हमें बहुत हायर वैल्यू भी मिल जाती है कभी कभी। तो इफ एनी ग्रेवल पीस इज एट द प्लेन ऑफ फेलियर, इट मे अपेरेंटली शो इंक्रीज्ड shear strength। तो अगर कोई ग्रेवल पीस है जो मतलब अभी फेल ही होने वाला है, मतलब अभी मरने वाला है, तो मतलब जाने ही वाला है, तो वो थोड़ी सी ताकत दिखाता है हमें कि हमें वो ताकत दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है। तो इसकी वजह से जो shear strength है वो हमारा थोड़ा ज्यादा बढ़ के आ जाता है। तो actual stress condition existing in the field on a soil element cannot be created on the sample। तो जो ऐसे एक्चुअल जो स्ट्रेस कंडीशन होती है हमारी, वो हम बना नहीं सकते सैंपल पे। और मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर भी इस पे पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर का हमने जो बोला था कि अगर हमको पानी में अगर डुबाते हैं सॉइल को, तो उस पे जो सॉइल पार्टिकल्स है पोर्स, वो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज नोन एज पोर प्रेशर। वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो टेस्ट इज सिंपल एंड फास्ट एज कम्पेयर टू ट्राइक्सियल टेस्ट। ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट है जो हमें नहीं पूछने वाले, तो इससे इससे थोड़ी अच्छी है। ये टेस्ट अच्छी है इसलिए इसको पूछ रहे हैं। ट्राइक्सियल शेयर टेस्ट दैट इज नॉट यूजुअली आस्क्ड। सो ड्यू टू द लेस थिकनेस ऑफ सैंपल, तो सैंपल की थिकनेस भी कम होती है, तो पोर वाटर को निकालना इजी हो जाता है, ड्रेन आउट करना इजी हो जाता है।
एंड इट इज सुटेबल फॉर कोइजनलेस सॉइल। तो ये कोइजनलेस सॉइल के लिए भी सुटेबल है। कोइजनलेस सॉइल क्या है? जिसमें फोर्सेस के इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन जो होता है उसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ आती है, तो ऐसे इसके लिए भी ये सूटेबल है। सो दिस वॉज द चैप्टर। ये बाकी के भी टेस्ट है यहाँ पे, वेन शेयर फील्ड टेस्ट एंड other tests. So these are not like asked for exam. So this was this chapter. Hope you like the video. In Telegram, I have uploaded the notes for this chapter, like the full PDF of this chapter. So if you want to read, you can read this. And if you don't have the book, so